As India moves towards 2030, a new generation of founders is reshaping the economic landscape with bold ideas and long-term vision. The session explores how supportive policy, digital infrastructure, and access to capital are creating fertile ground for innovation across sectors. It's a conversation about ambition with direction, where purpose fuels enterprise and entrepreneurship becomes a defining force in India's global rise. I would like to request the presence of Shri Sudhanshu Trivedi ji, who is amongst us. Give him a big round of applause, everyone. He is a member of Parliament, Rajya Sabha, Uttar Pradesh. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आदरणीय सुधांशु जी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज हमारे टाइकॉन के कार्यक्रम में शामिल हुए। अब मैं माननीय वाइस चांसलर विनय पाठक जी से रिक्वेस्ट करूंगा दैट सुधांशु जी को लेकर वो स्टेज पर आएं। So thank you very much for this last session and the most exciting session. So with us in this TiECon UP, most of us remember that this TiE UP chapter when at Kanpur was started. I was also the assistant professor in computer science at HBTI Kanpur. And then there was a big program at Kanpur when Honorable Defense Minister, who is today's, and he was the Honorable CM of the state, and he came for that program, and probably Sudhanshu ji also came for the program. I think everybody in this hall knows Sudhanshu ji very well. He is BTech in Mechanical Engineer from Pantnagar. He did his PhD from university, but mostly worked at IIT Kanpur with Professor Dhande. A great parliamentarian, a great thinker, and a person who has deliberated on all the areas of the life. I know him from very past when we graduated out in the engineering batch. So Dr. Sudhanshu has seen the all kind of things which has happened in this country. Maybe he's a thinker on politics, on spirituality, on religion, and on Indian traditions. One of the things which I really want to say before he comes that the Indian tradition was a tradition of production, which I think we lost after the independence. Because if you remember the kind of thing which we said earlier, and it was written by Kavi Ghag, which is very near to us, Uttam Kheti, Madhyam Van, Nikrit Chakri. That means Kheti, the agriculture was Uttam because it does productions. Trading was the second business, which was only things, and the service was the last thing. But once we graduated out in the engineering, the getting a job in multinational or a public service or a public PSU was the great kind of a thing. But slowly, in last 10 to 15 years, what I am seeing, the young people are choosing more of innovations and more forming more companies, which is actually a silver line for all of us who are at 60s or 50s, that our new younger generation are doing that. But the important thing more than that, the patents which are filed today, 50% of the patents are from Tier 2 and Tier 3 cities. The unicorns, sunicorns, and other things which is happening are also coming from Tier 2 cities. And this has happened because we have got a technology, and the technology which has come, now we are in the age of man and machine going to be one at the artificial intelligence and other things. So the technology is new equalizer. We have grown, we said there was a Samajwadi movement and social movements and all other political movement. But the biggest movement at this time is happening with the technology. Because whatever machine I procure and data I have, the same data is with the last person who is serving us in this room as a kind of a thing. So everybody is equitable in terms of accessing the informations and knowledge, and same kind of thing which is happening across the world. And with this geopolitical situation,
it is also happening that this country is getting boost, but we have got stiff competition with China because we are at only 2% of the production. The 40% productions is with China. I think these are all important things. Looking to the education, looking to the DNA of this country, looking to the industry which we have, looking to the innovations which we have in the earlier India or earlier Bharat or in these days. We want to listen Dr. Sudhanshu's speech, how this change of wind is happening, what is relevant to Uttar Pradesh, because he has been also brought up and things from Sitapur, a tier 3 city, and has seen Kanpur and Lucknow and all other cities of things very closely. How these things can change, what are the potential with our youth, how they can change the things with the kind of culture and the spirituality with us. So संस्कार और शिक्षा और innovations के साथ how to earn good money and be number one, and Vishwaguru and whatever Honorable Prime Minister has said, Viksit Bharat at 2047, with that vision, what innovations, what change of wind has occurred, what we should do and what should be our recipe and algorithm. I will request Honorable Sudhanshu ji, a parliamentarian, a great thinker, great friend of us and great friend of Uttar Pradesh, to give his speech, please. बैठ के बोल दो, बैठ के ठीक रहेगा अतुल जी, जैसा आपको अच्छा लगे, खड़े होकर बोल दीजिए शायद चले। Distinguished dignitaries present here, Shri Sanjeev Shriya ji, Dr. Atul Kapoor, Rao Vikram ji, Ramesh Shuri ji, Vishwanath Gupta ji, and Vice Chancellor of Kanpur University and my old friend Professor Vinay Pathak. He has already said, Professor Pathak has said in his initial remarks that we are heading to an age in which the technology is going to change the entire concept of business, entrepreneurship, and finance, economy, everything. If we have to understand this, today we are in February 2026, exactly 30 years back, in the month of February 1996, when IBM computer Deep Blue was having his first chess match with then world chess champion Garry Kasparov. That was a very unique new thing to be considered, that the machine is playing a chess game with a human, and that too, who was a world chess champion. And you know, in the first part, IBM के Deep Blue ने Garry Kasparov को पहली बाजी में हरा दिया था. Though subsequently Garry Kasparov managed to win. But from there, we have reached to the age of AI, which was considered unimaginable, beyond comprehension at the time. But if you look at the time, India was nowhere considered in terms of technology or in terms of IT or in terms of these type of fine and emerging technologies at the time of 1996, the era which I am talking about. Now, India has hosted World AI Summit. India has previously co-chaired a couple of years back in Paris. Prime Minister Narendra Modi ji was there with the French President Emmanuel Macron to co-chair the World AI Summit. And now just we have concluded World AI Summit in India, in which 20 head of the states were present. UN General Secretary Antonio Guterres was present. All top IT companies of the world were present. And they were looking India as a great hope. And India was at the leading position of AI. And I'm not saying this just as a part of some goodwill, feel-good factor. No, there was having some concrete evidence. Like Google has decided to invest $15 billion for their project, which will be stationed in Visakhapatnam. Today, the first and foremost requirement of any machine or any product is chip. And chip has become a point of conflict among the major powers of the world.
And you know, you might not be remembering that in, I think in Republic Day of 2024, Prime Minister has given, our Government of India has given Padma Bhushan to the chief of Foxconn. तब किसी को समझ में नहीं आया Foxconn ताइवान की कंपनी, इसके CEO को क्यों भारत ने पद्म भूषण दिया. Now you understand, Foxconn has decided to build this biggest chip manufacturing company outside China in India. That was a vision which was guiding and motivating our country that how we are going to go. So if Foxconn is making their biggest factory outside China of the entire world in India, Google is investing $15 billion, iPhone is having its biggest manufacturing unit outside China, it is in India, and even Samsung, which is the biggest mobile manufacturer of the world, they are having its world's biggest manufacturing factory in India and in Uttar Pradesh, in Noida. So you can understand that level of confidence and level of trust which India is able to develop. In this context, I would also like to tell you an interesting fact. You know, even during the tariff war, when US has put 50% tariff on India, but still, for several months, they have exempted electronic items, smartphone. And even after this trade deal, on which since this is not a political platform, so I will not like to go into that. Some type of mispropaganda has been propagated that every product is having 18% tariff. No. Pharmaceutical and the electronics are having zero tariff. Why? Today in US market, only those iPhones are sold which are manufactured in India, not those who are manufactured in China. They are for the rest of the world. But American market only accept those iPhones which are manufactured in India. क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि ऐसा तो नहीं वहाँ चिप के अंदर चाचा जीपिंग ने कुछ मिला दिया हो, कुछ गड़बड़ कर दिया हो, तो they are having a lack of trust. On the other hand, Nvidia, which is the biggest company of the world in this sector, which is having around $5 trillion economy, which is, more than Indian economy, the $5 trillion worth of the company. And Indian economy is 4-point-something trillion dollars. So what happened? First, America put restriction on Nvidia not to sell it to China. After China has flexed its muscles on rare earth metals, then America opened it for Nvidia that they can export to China. But now, China is giving instruction to its companies that as far as possible, avoid the chips which are coming from Nvidia, because they are having a lack of trust or trust deficit, as if America might have not done something in the chips. So if America is having the trust deficit on China and China is having the trust deficit on America, but both can have a deficit, no deficit, though both can have a full trust over India. Now you can understand what sort of opportunities which we are having in the times to come. और इसमें एक और बात समझिए कि AI के इस दौर में जब हम 30 years में आगे बढ़कर आए हैं, this is having both the aspect, software and hardware. Previously, when we excelled very well in software, then we were ridiculed, we were demeaned. This is just a laborious job. This is just a labor job. Indians are nothing but a cyber coolie, and these type of phrases were used in the Western world. But we have already achieved a level of excellence, competence in software, and now government has very systematically transformed it or transforming it into a hardware manufacturing base. India has started semiconductor mission. In this budget, India has started critical mineral mission, and now we are going to have a target of biggest chip producing country, obviously after China. So now we are moving towards hardware also. So India can have a very good opportunity in the time to come, which will be giving us a very significant position both in software as well as the hardware. And moreover, one more thing it has to be understood
at the time, if you look, the entire world is having a point of conflict. Everywhere there is a war. अभी आपने देखा आज ही इजराइल और ईरान में लड़ाई शुरू हो गई. अच्छा, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो लड़ ही रहे हैं. कंबोडिया और थाईलैंड जैसे पीसफुल देश भी आपस में लड़ रहे हैं. रशिया यूक्रेन की लड़ाई चली रही है. इजराइल हमास की तो पहले ही से चल रही थी. चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है ही. If you look, the entire world is having a very complex situation, and how economy, business and entrepreneurship is going to take shape in the times to come. I will give you one more example. अभी आपने देखा कि भारत की सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ. First we have done an FTA with Australia and New Zealand. Then we have done an FTA with Britain. When Keith Starmer, British Prime Minister, had said that when he landed in Mumbai, he said this is the biggest delegation, business delegation taken by any British Prime Minister anywhere in the world. That shows the importance of India. Then we have entered into an FTA with the northern European countries, Switzerland, Norway. Usually they are called the Nordic countries. Then we have the deal with EU, regarding which Ursula von der Leyen has said this is the mother of all the deals. और उसके बाद 72 घंटे के अंदर अमेरिका के साथ FTA हो गया. अब मुझे लगता है किसी को बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी कि किसको जरूरत महसूस हुई होगी हम दोनों में से कि FTA किसको करना है. अब हमारा वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज के साथ FTA है. And it is an established fact. Whenever you are having a free trade agreement with any of the country which is higher economy or developed economy than you are going to be benefited. जैसे ब्रिटिशर्स आज से 200 साल पहले आए थे तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी थे तो ब्रिटेन गॉट benefited. In the same manner, if we are having FTA with America, Europe, Britain, UAE, which are economically in much better position than us, then definitely we are going to be benefited. अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमने भी तो जीरो टैरिफ कर दिया है प्रोडक्ट्स में. तो बड़ी लॉजिकल सी बात है. वहां पर जो लेबर का कॉस्ट है, वहां पर जो क्रूड मटेरियल, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो कभी भी हमारी मार्केट की कॉस्ट की बराबरी कर ही नहीं सकते. लाइक द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन यूपी और द लेदर इंडस्ट्री इन कानपुर. आपको लगता है कि अमेरिका से कोई लेदर का प्रोडक्ट आएगा, वेदर इट इज अ लेदर बैग और शू, वो हमसे सस्ता यहां पे मैन्युफैक्चर करके दे देंगे? नॉट पॉसिबल. सो ऑब्वियसली हाँ, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाएगा, द फार्मास्यूटिकल, वी आर गोइंग टू इमर्ज एज अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. तो हमारी जो मेडिसिन जाएंगी, जो फार्मास्यूटिकल जाएंगी, उनको फ्री फ्लो मिलेगा. इट्स ऑब्वियस. उनके जिस चीज को हम फ्री फ्लो दे रहे हैं वो हमारे यहां से कभी भी सस्ता वो यहां पे नहीं बेच पाएंगे. तो बाय डिफॉल्ट इफ you can analyze at the micro level, then definitely you will be able to understand that we are going to be benefited by this. अब आप एक और चीज देखिए. अमेरिका ने कहा यूरोप से कि भाई you have to spend 5% of your GDP on defense. So what is the option left with Europe? Either start manufacturing in Europe, which will be economically unviable, or you start shifting your manufacturing industry to America, which is more economically unviable, or you shift your manufacturing industry to China. With you are having a trust deficit. So by process of elimination, the only option left is India. इसीलिए उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा मदर ऑफ ऑल द डील्स. तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. और एक और बात समझिए, इवन इफ यू लुक एट अमेरिका, ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे. अगर सारे आईफोन्स की वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ शिफ्ट करना चाहे तो 3 से 4 साल का समय लगेगा, जब तक तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. एंटायर असेंबली लाइन, एंड द कॉस्ट विल बी 2 to 3 times मोर. अब आप दूसरी चीज देखिए, हम किस मामले में बेटर पोजिशन में हैं. यू नीड ऑल द 4 forces विद यू: इंटेलेक्चुअल फोर्स,
That is, intellectual potential should be within your research, design, innovation, others. Second is manufacturing. Third is business, finance, logistics. And fourth is labor. अब देखिए यूरोप के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा हम तो डेवलप्ड हो गए, हमें लेबर थोड़ी करना है, लेबर्स आउटसोर्स टू चाइना। अरे हमें लड़ाई थोड़ी लड़नी है, सिक्योरिटी आउटसोर्स टू अमेरिका, एनर्जी आउटसोर्स टू रशिया। हम क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। एंड देन व्हाट हैपेंड? नाउ दे रियलाइज्ड दैट यू हैव आउटसोर्स एवरीथिंग टू outside forces, and now you are feeling problematic. But India and the present government is trying to make a very strong, robust structure in which we should be self-sufficient in all the four aspects. Just one more example. Just you have seen the decision of the central government that E20 ethanol 20% petrol to be used in India. Okay, there can be some teething problems and gestation problem, that's okay. But if you look, in the last continuous 10 years, consistent emphasis of the budget was on the capital expenditure. So we are able to make a huge infrastructure. Today, more than 150 airports. Almost entire railways has been electrified. Railway routes have been electrified. Huge network of national highways and a very good network of national waterways. And also a very strong network of digital communication. आज की डेट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट बनाया था, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है यह समझ में आ सकता है आपको। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इफ इन कॉन्टेक्स्ट विद यूपी, दिस एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग मेनली कम्स फ्रॉम शुगर और मेज। शुगर और शुगर केन इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू दिस। और सबसे ज्यादा शुगर केन इंडिया में कहां पाया जाता है? यूपी एंड महाराष्ट्र। तो ऑब्वियसली अगर हमारा 20% डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम होगी तो फॉरेन करेंसी के ऊपर प्रेशर कम आएगा, एंड इन टर्न इट विल बी गिविंग कंट्रीब्यूशन टू दोज स्टेट्स विच विल बी प्रोड्यूसिंग एथेनॉल, आउट ऑफ विच महाराष्ट्र एंड यूपी आर लाइकली टू बी बेनिफिटेड मोस्ट, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। अब आप दूसरी चीज देखिए, इन चीजों को लेने का अंतर क्या पड़ता है। जैसे इन केस ऑफ वॉर, क्योंकि अब आज पूरी दुनिया में वॉर हो रही है, तो आप ये देखें कि पेट्रोलियम पर आपकी डिपेंडेंस है फॉरेन के ऊपर, बट वॉर के समय तो वो डिपेंडेंस क्रूशियल और क्रिटिकल हो सकती है। तो आपने क्या किया, जिन जिन चीजों पे आप पेट्रोलियम की डिपेंडेंस कम कर सकते थे, वो एक बड़ी लंबी प्लानिंग के तहत पिछले कई वर्षों से किया गया। जैसे नाउ द ऑलमोस्ट ऑल रेलवे रूट्स आर इलेक्ट्रिफाइड, तो वहां तो डीजल की जरूरत नहीं है। नाउ यू आर एबल टू सेव इट। इफ एथेनॉल 20% इज देयर, यू आर एबल टू सेव द 20%. And moreover, we are having this solar energy panels. We are moving very significantly towards that electricity which is green energy. And sometime what happens, whenever a government sets a target, usually they fall behind the schedule. India decided that by 2040, India's power generation, 40% power generation should be from the clean energy. And you know by which year India completed the target? It was set for 2030 कि 2030 तक हमारा 40% पावर जनरेशन क्लीन एनर्जी का होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी, जिसमें सोलर है, विंड है, इन सब से। We attained that target by 2022. Then the revised target was set to 50% installed capacity by 2030. And we achieved 50% by 2025. Now India is having 250 gigawatt of clean energy, and around 128 or 29 gigawatt from solar energy.
अब आप ये भी बात समझिए, अगर हम सोलर से एनर्जी बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से हम रेलवेज को भी चला रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को बहुत ही डेक्स्ट्रसली मैनेज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो टारगेट है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप पैनल्स होंगे, यू विल गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और जरूरत पड़ेगी तो उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चिप की उसमें जरूरत होगी, तो आपका स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार भी ऑलमोस्ट फ्री में चार्ज हो सकता है। तो वेरी ह्यूज रिडक्शन इन रिक्वायरमेंट ऑफ पेट्रोलियम। और इसके बाद अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो उसको बेचने की भी व्यवस्था है। इसे कहते हैं मुफ्त की बिजली देना, न खजाने पे जोर और न पर्यावरण पे जोर। बगैर खजाना खाली किए हुए मुफ्त की बिजली देने की व्यवस्था करना, और दूसरे सरकारें थी जिनका दिमाग खाली था, तो खजाना खाली रख करके, दिमाग को खाली रख के खजाने को लुटाकर मुफ्त की एनर्जी देने की कोशिश करना। यह मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि पूरे के पूरे टाइम में किस प्रकार से ट्रांजिशन कंट्री में हुआ। अनदर एग्जांपल, इसका अभी आपको यूपी से भी कनेक्शन बताएंगे। इंडिया में इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की तरफ पहले किसी ने, अटल जी के टाइम में थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, बट दैट डिडंट पिक्ड अप, एंड आफ्टरवर्ड्स मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट केम, और वो आइडिया आगे नहीं बढ़ा। अब आप इंडिया को देखिए, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, गुजरात और राजस्थान, पानी कम गिरता है, सूखा ज्यादा रहता है, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग सन अवेलेबल रहता है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, असम, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पानी ज्यादा है, नदियों के पाट चौड़े हैं, फ्लड का इश्यू है, बाढ़ की समस्या है। अब इन दोनों समस्याओं को अपनी स्ट्रेंथ में, यानी जिनको वीकनेसेस माना गया फॉर अराउंड 6 डिकेड्स इन इंडिया, हमने क्या किया? सबसे बड़ा सोलर पावर का प्रोजेक्ट कहां पे लगा है? राजस्थान में और गुजरात में। इन 2 स्टेट्स को सोलर पावर का हब बना दिया गया, और आसाम से लेके तो यहां हमारे भागीरथी से लेके प्रयागराज, काशी और हल्दिया तक इनलैंड वाटरवेज, वहां से लेके गुवाहाटी तक, तो ईस्टर्न साइड में ड्रेजिंग की गई ताकि नदियों की गहराई बढ़ जाए, उनके विड्थ बढ़ जाए, इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन के लिए वो बेटर हो जाएं। तो वहां पे हमने नेशनल हाईवेज ऑफ, मतलब वाटरवेज शुरू कर दिया। बाढ़ की समस्या भी कम हुई, और जब आप थ्रू वाटरवेज कम्युनिकेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो 1/4 से कम कॉस्ट आती है, एंड 1/4 से कम आपका एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो आपने देखा कि इस ढंग से प्रॉपरली प्लान करने से क्या हुआ कि दोनों तरफ की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुई, और वो आगे बढ़नी शुरू हुई। इस प्रकार से अब जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप देखें, तो यहां से काशी और प्रयाग से जो शुरुआत हो रही है, तो यूपी की इंडस्ट्री के लिए जो ऑन द ईस्टर्न साइड हमें जो भी एक्सपोर्ट करना है, उसमें एक साइजेबल क्वांटिटी कैन बी एक्सपोर्टेड टू वाटरवेज। हम उसके वन ऑफ द बेनिफिशियरी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एथेनॉल में यूपी कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी। अब आप एक चीज और देखिए, वन मोर थिंग, जब लड़ाई होती है तो हवाई जहाज तो भाई पेट्रोल और डीजल पे ही चलेगा, वो तो आपको पेट्रोलियम पर ही चलाना पड़ेगा। तो जितना हम पेट्रोल बचाएंगे, जितना हम क्रूड ऑयल बचाएंगे, क्या थी प्रायर टू 2014, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर टैलेंट नहीं था, इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं थी। हम वो कंट्री थे जिसने सैटेलाइट बनाए, हम वो कंट्री थे जिसने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, पर कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं उत्पन्न होता था कि जो कंट्री सैटेलाइट बना सकता वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकता। Does this thing sounds logical? या जो कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है वो नॉर्मल एसॉल्ट राइफल और पिस्टल नहीं बना सकता। Does this thing sounds logical? It sounds illogical. इसका मतलब हम बना सकते थे,
पर बना नहीं रहे थे। क्यों नहीं बना रहे थे, मैं उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना चाहता हूँ। मे बी कुछ भी हो सकता है कि भाई बनाना ही नहीं चाहा ताकि उनको खरीदते रहो और खरीदने में जो कुछ चलता है वो भी अपना चलता रहे। मे बी वॉट एवर द रीजन वॉज, बट in the last 10 years, the biggest emphasis was on the defense sector and defense manufacturing. And till this year, India produced 1,36,000 crore rupees of defense manufacturing. And we have exported 30,000 crore rupees of equipment, defense equipments only. अब ये सोचा गया कि डिफेंस के दो कॉरिडोर बनेंगे, एक साउथ में एक नॉर्थ में। तो साउथ का कॉरिडोर तो बना तमिलनाडु में और नॉर्थ का मिला उत्तर प्रदेश। और अभी जो डिफेंस कॉरिडोर बना है उसमें कानपुर के एरिया में अडानी डिफेंस का जो 500 एकड़ का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये किसी सिंगल यूनिट में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस की पूरी असेंबली हो रही है। ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस। नॉर्दर्न इंडिया में पहली बार डीआरडीओ का कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश हुआ है, दैट टू इन उत्तर प्रदेश, which was considered just a decade before not friendly for investment. एक दौर था, हमारे एक फ्रेंड थे, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, 20-25 साल बड़े थे। वो अमेरिका में सेटल हुए, कानपुर के रहने वाले थे और उनको पहले तो उन्होंने आईआईटी से किया, फिर उन्होंने नौकरी की और उनका अच्छा बिजनेस जम गया। उनका वहाँ पर यूएस में, न्यू जर्सी में अच्छा बिजनेस हो गया। तो उनको लगा कि कुछ फैक्ट्री खोलनी चाहिए अपने यहाँ। तो वो मातृभूमि के प्रति अनुराग से वशीभूत होकर उन्होंने कहा कि मैं कानपुर में फैक्ट्री खोलूंगा। मूलतः फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, बचपन सारा उनका पिताजी कानपुर में नौकरी करते थे, यहाँ रहे। जब वो यहाँ आए, ये 20 साल पहले की बात है, कहा जैसे ही पता चला कोई एनआरआई आने वाला है, इतने लोग आ गए पहले से ही हिसाब किताब करने कि साहब ये करना है तो इतनों को नौकरी दे दीजिएगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये फलाने जी हैं, जब तक आपको इनका सहयोग नहीं मिलेगा, इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो घबरा गए। एंड यू नो, ही एस्टैब्लिश्ड हिज फैक्ट्री इन फरीदाबाद। दिस वाज द एनवायरनमेंट इन उत्तर प्रदेश। हम पिछले 18-20 सालों से दिल्ली ज्यादा रह रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, उस जमाने में बिजनेसमैन कहता था भाई मुझे यूपी नहीं जाना, नोएडा के आगे जाके मुझे कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, मुझे यूपी जाना ही नहीं है। वहां से चेंज इतना आया कि आज माफिया कहता है कि मुझे यूपी नहीं जाना है और बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी जाना है। इतना बड़ा चेंज आपने देखने को मिला है। और अब एक दौर था, अब ये जो ब्रह्मोस बन रही है यहां पर, इट इज बीन एक्सपोर्टेड राइट नाउ। एक कंट्री को तो डिलीवरी हो चुकी है, फिलीपींस। इंडोनेशिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। देयर आर 6 कंट्रीज हु आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ साइनिंग इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस टू देयर कंट्री। Intermediate range ballistic missile is being manufactured in UP and exported, मतलब not to be taken otherwise। किसी दौर में इस यूपी की ये इमेज थी, यहाँ कट्टे बनते थे और अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन के एक्सपोर्ट हो रही है। कम से कम इससे समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा ट्रांजिशन प्राप्त करने में सफल हुए। अब एक और एंगल देखिए जहां पर कि आने वाले टाइम में यूपी विशेषकर लाभान्वित हो सकता है। वो क्या है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है प्रधानमंत्री जी ने, मैंने जहां एआई से बात शुरू की थी, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था जब तक हम लोग पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, मतलब 30 साल पहले की बात करें, कि इंडिया किसी टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। इम्पॉसिबल। वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज सेड that digital transaction can never take off. Indians are not so tech savvy. They are less literate. They are not able to adopt the new technology. And what is the status today? India is world's #1 country in digital transaction. And it's not just #1. India contributes 49% of the digital transaction of the world, which is more than put US and China together. Last year, UPI
has become the biggest digital transaction platform surpassing Visa. अब आप देखिए इसके साथ क्या अंतर आया। जो एक्सपेंस हुआ है मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का, टुडे वी आर हैविंग 1 बिलियन इंटरनेट कनेक्शन, 84 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 1.15 billion phones, out of which 85% are smartphones. यानी 95 crores smartphones हैं. Everybody is having access to that technology. अब there are certain theories. इसको मैं दूसरे ढंग से not to be taken otherwise in the political context, but in the entrepreneurship, development and economic context, this has to be understood. In 2014, India was having 14 crores smartphones. अगर उस समय आप ये सो कॉल्ड अल्ट्रा सोशलिज्म ले आते, ओह दीज पीपल आर द प्रिविलेज्ड, तो हमें क्या करना है, इनसे लेकर दूसरों को देना है, तो उन 14 करोड़ से लेकर आपने दूसरों को बांटा होता तो आज क्या होता, सबके पास पुराना वाला एक नोकिया होता। मगर फर्स्ट क्रिएट द वेल्थ एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। सो टुडे 95 करोड़ पीपल आर हैविंग द स्मार्टफोन। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत, ये सारी बातें हमारे यहां धर्मशास्त्रों में बहुत ऐसी लिखी, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ लाइफ व्हिच नेवर चेंजेस इवन इन 1000 years, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य चा धनस्य चा। यानी धर्म, धन और विद्या, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन करते हुए आती हैं। एक टीचर अपनी जिंदगी में हजारों बच्चों को अपने इक्विवेलेंट बना सकता है, बट हजारों बच्चे खड़े होके एक प्रोफेसर नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन करता है। धर्म में एक सिद्ध पुरुष हजारों लोगों को की जिंदगी को इनलाइटन करके उनको स्पिरिचुअली अवेकन कर सकता है, पर हजारों नॉर्मल व्यक्ति खड़े होकर एक स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करके हजारों लोगों के जॉब्स का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम ये सोचें कि वो नीचे से होकर ऊपर जॉब का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इन बातों को समझते हुए गवर्नमेंट के लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, वो पिछले लंबे समय में हुए। अब एक उदाहरण देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो मुझे लगता है 3 चीजें यूपी में के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। एक तो जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वर्क है, मतलब जिसमें लेदर भी है, मुरादाबाद का स्टील भी है, लखनऊ का चिकन भी है, और बनारस और भदोई का, जो बनारस की साड़ी हो या भदोई का कालीन, जो हमारे ट्रेडिशनल कानपुर का लेदर वर्क। दूसरा अगर हम देखें तो डिफेंस का जो सबसे बड़ा हब यूपी में बनने जा रहा है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और टूरिज्म। तो अगर हम इसमें ये तीनों चीजों को ले लें तो हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म, मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HMT तो ये 3 चीजें अगर हम फोकस करें तो यूपी की पूरी तरीके से दशा और दिशा बदल सकती है। अब हैंडीक्राफ्ट में क्या हो सकता है, वैसे तो मेरा PhD में भी इसी सब्जेक्ट से लेना मतलब इन्वॉल्वमेंट था, प्रोफेसर पाठक जानते होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, जैसे मान लीजिए कोई लेदर का प्रोडक्ट बना रहा है, या मैं ये कहूं कि कोई लखनऊ का चिकन की कारीगरी बना रहा है, तो जो डिजाइन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बाय ट्रेडिशन वो जो वर्कर है वो अपने हिसाब से, अपने इमेजिनेशन से बनाता है और उसी में थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करके वो बेचता रहता है। सेम थिंग हैपेंस विद अ साड़ी, दैट सेम थिंग हैपेंस विद अ पीतल, जो ब्रास इंडस्ट्री, सेम थिंग हैपेंस विद लेदर और एनी अदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अब अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें और आधुनिक टेक्निक का यूज करके, इंक्लूडिंग AI, जितनी भी डिजाइन्स हैं पुरानी, सबको प्रॉम्प्ट करके उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिनको मोटिव्स कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। नाउ यू फ्रॉम योर कंप्यूटर यू कैन क्रिएट एनी कॉम्बिनेशन, और जैसी भी आप चाहेंगे वैसी आप नई डिजाइन बना सकते हैं। पर कौन सी डिजाइन बनाएंगे? तो ये जो मोदी जी ने इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बना दी है,
अब आप पूरे अपने गांव में से बैठकर, छोटे शहर में बैठ के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारी एफटीए हो गई है, आपको पता चला कि साहब जर्मनी की इस मार्केट में इस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की ये डिजाइन अच्छी चल रही है, लीजिए। आपने प्रॉम्प्ट किया उसको और वो डिजाइन आपके सामने आ गई, आपने वो डिजाइन बनाई और सीधे प्लेस कर दिया। बाय यूजिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी, यूपी, जिसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, जो मुख्यमंत्री जी ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की थी, अगर हम उसमें जो हमारे प्रमुख 15-20 प्रोडक्ट्स हैं उनको ही हम आइडेंटिफाई कर लें, तो उनको इंटरनेशनल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल लेवल की स्किल और बहुत इजीली हम उनको बिजनेस करके एक नए स्वरूप में उभार कर आगे ला सकते हैं। और इसमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टार्टअप इंडिया वहां से लेके मुद्रा योजना तक और आपके कारीगरों को विश्वकर्मा योजना तक, सबको अगर आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में कर लें, तो उनसे भी गवर्नमेंट के फाइनेंस को आप काफी आगे ले जा सकते हैं। अब डिफेंस में तो मैंने आपको बताया, वो तो एक अलग फील्ड है। नाउ कम टू टूरिज्म। यूपी इज हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, जिसको कभी किसी ने प्रॉपरली यूज ही नहीं किया। मतलब आप समझिए कि भगवान राम की जन्मभूमि यहां, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि यहां और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली यहां, प्रयाग का महाकुंभ यहां, काशी यहां पे, और उसके बावजूद हमने टूरिज्म को प्रॉपर बिल्डअप नहीं किया। क्यों नहीं बिल्डअप किया? अब उसका कुछ भी रीजन रहा हो, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन यूपी ऑल्सो कनेक्ट्स विद द सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग ऑफ इंडिया एंड ए सेंटिमेंट ऑफ सेल्फ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अभी आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो IIM लखनऊ ने एक स्टडी की है, उसने बताया है कि कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए का तो सीधा कंट्रीब्यूशन हुआ है, 1,20,000 लोगों को जॉब मिले हैं, और जो वेंडर्स प्रायर टू बिल्डअप ऑफ द टेम्पल एवरेज 400-500 रुपीज पर डे कमाते थे, अब वो 2,000 से 2,500 रुपीज पर डे कमाते हैं। और उससे पहले पूरे साल में 1,70,000 लोग आते थे, अब 2024 के वर्ष में 22 से 23 करोड़ लोग आए, और 2025 के तो पहले 6 महीने में ही करीब, चूंकि कुंभ भी था इस कारण से 16-17 करोड़ लोग आ गए। अब आप ये समझिए, जो लोग ये कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, तो मंदिर बनाने से इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा होगा ये दिखाई पड़ता है, मगर उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को टैप करने की भी जरूरत है। इसके लिए अयोध्या में एयरपोर्ट भी होना चाहिए। इसीलिए टुडे यूपी इज द ओनली स्टेट इन कंट्री विच इज हैविंग 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अयोध्या में भी है, वाराणसी में, कुशीनगर में, लखनऊ में और वाराणसी में 4। मात्र 10-12 साल पहले या 15-20 साल पहले यूपी में 2 ही फंक्शनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 15-16 फंक्शनल एयरपोर्ट है, और 7-8 एयरपोर्ट तो ऐसे जहां मल्टीपल फ्लाइट्स पर डे जाती है। आज यूपी में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ये आगरा वाला, लखनऊ दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से कनेक्ट होने वाला एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे होना चाहिए था, एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, और डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब जेवर एयरपोर्ट जो वर्ल्ड के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होने जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंजिंग सिनेरियो होगा, इसको आप किस ढंग से टैप कर सकते हैं, उसके लिए एक वातावरण, और वो सारा वातावरण तब तक काम नहीं करता है जब तक लॉ एंड ऑर्डर पे कॉन्फिडेंस ना हो। एंड द यूपी गवर्नमेंट हैज वेरी सिग्निफिकेंटली, वेरी सीरियसली वर्क फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड ड्रास्टिकली एबल टू चेंज इट। पावर सप्लाई, एक दौर था कि पावर कट तो बहुत आम था। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। जब योगी जी CM बने
तो उनके पास जाकर प्रपोजल दिया गया कि साहब आप ये अप्रूव कर दीजिए, गोरखपुर को 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। तो उन्होंने कहा जी गोरखपुर को क्यों? कहा साहब ये ट्रेंड रहा है जो वीआईपी एरियाज हैं अदर देन मेट्रोज, उसमें जैसे उन्होंने कहा भाई लखनऊ राजधानी है तो वहां होती थी, तो रायबरेली में होती थी, अमेठी में होती थी, इटावा में होती थी, रामपुर में होती थी, तो अब सब गोरखपुर में होगी 24 घंटे। तो उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा ये बताओ कितने दिन में आप ऐसी योजना बना के ला सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप 24 घंटे पावर सप्लाई कर सकें? जब होगी तो सब में होगी। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग वन एरिया। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। 2 महीने बाद वो लोग पूरी योजना बना के लाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, नाउ इट इज अप्रूव्ड। और आज आप देखते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी, इन एवरी विलेज देयर इज अ कंसिस्टेंट कांस्टेंट पावर सप्लाई। और इस पावर सप्लाई के साथ एक कल्चरल एंगल भी है जिसका कि अभी पाठक जी ने जिक्र किया था। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किस दिन की थी? 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया था। और यू नो, दुनिया में अगर कोई एक सड़क ऐसी है जो सबसे लंबी सड़क है विच इज टोटली इलेक्ट्रिफाइड बाई सोलर एनर्जी, वो सिटी कौन है? वो है अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर की सड़क टोटल सोलर एनर्जी से है, स्ट्रीट लाइट। इफ इन इंडिया देयर इज वन विलेज जिसमें एंटायर एनर्जी सोलर एनर्जी, हाउस होल्ड एनर्जी टू पब्लिक प्लेसेस टू स्ट्रीट लाइट, एवरीथिंग इज सोलर एनर्जी, दैट इज मोढेरा विलेज इन गुजरात। और उसकी खासियत क्या है? वहीं पर एक सूर्य देव का मंदिर भी है। यानी दैट शोज दैट इंडिया इज इमर्जिंग विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो इन एक्सीलेंस। अभी तक हम ये मानते थे कि कॉन्फिडेंस और एक्सीलेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसलिए हम अगेंस्ट में खड़े होते थे। एग्जाम्पल के लिए, किस ढंग की चीजें हमारे दिमागों में भर दी जाती थी। शादी का सीजन चल रहा है, 10-12 साल पहले आपने सुना होगा ये शादी में बहुत खर्चा होता है, बड़ा वेस्टेज होता है, ये वेस्टेज रोकना चाहिए। सब खूब बातें आती थी ना। आज क्या बताते हैं? एवरी ईयर इंडियन वेडिंग इज अ मार्केट ऑफ 5.5 to 6 लाख करोड़ रुपीस। जो चीज हमारी स्ट्रेंथ है उसके प्रति हमारे मन में ग्लानि भरने का प्रयास किया गया। नाउ दैट इज एन इमर्जिंग बिजनेस, और ये एक ऐसी यूनिक मार्केट है जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। दिवाली में पटाखे मत जलाओ, होली में रंग मत खेलो, अभी तो बड़ा नुकसान करता है। अब आप देखिए, इस साल जो फेस्टिव सीजन आया, फ्रॉम नवरात्रि टू दीपावली टू छठ, around 5,80,000 crore rupees expended by the Indians. That is a contribution in the economy. Looking at the positive side, that how you, और इसी समय में आप याद करिए, Prime Minister has decided to reduce the GST tax from the first day of Navratra. And that became one of the prominent reason that Indians spend so much during the festive season. And that became one of the important reason that despite the turbulent waters of the entire global economy, we sustained 7.2% growth rate, and the latest which has come is 7.8% growth rate. और हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन से उन इंटरनेशनल शॉक्स को एब्जॉर्ब किया जो हमें आंखें दिखाई जा रही थी कि आपको टैरिफ में ये शर्त रखनी होगी, वो शर्त। हमने कहा 1.4 बिलियन की मार्केट है, हम अपने आप कंज्यूम करके देख लेंगे, और हमने उसको मैनेज किया। और इसमें फेस्टिवल भी वन ऑफ द रीजन था। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके कल्चरल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे ही बताता हूं। दिवाली में पटाखे मत जलाओ, बड़ा पैसे की बर्बादी होती है। अब दीपावली का नाम क्या है? दीपावली, यानी दीपों की कतार। और ये क्या कहा जाता है कि जब भगवान राम आए तो अयोध्या के लोगों ने अपने घरों पे घी के दियों की कतार जलाई। इसका मतलब ये देश इतना प्रॉस्परस था कि यहां पर इतना घी होता था, इतना दूध होता था कि दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकाल के भी इतना घी होता था कि हर घर में दियों की कतार लग सके। दुनिया में कोई देश है जिसके पास ये होता हो?
such a level of prosperity and we have been infused with the inferiority on that. होली का समय आ रहा है, पानी मत खेलो, तो मैं पूछना चाहता हूं, पहली बात रंग, दुनिया में रंगीन कपड़े किस देश में पहने जाते थे? पक्का रंग लगाना सिर्फ हमें ही आता था हजारों सालों से। इसीलिए आप देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिविलाइजेशंस, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, बाकी जगह सफेदी कपड़े पहनने का प्रचलन है, सिर्फ हमारे यहां भगवा पहना जाता है, क्योंकि सफेद तो नेचुरल है, कपास में आता है। रंगने की टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, तब तो आप रंगीन कपड़ा पहनेंगे। पक्का रंग लगाना हम ही को आता था। अब आप सोचिए, इतने रंग बिरंगे फूल हमारे यहां होते थे, फूल से रंग निकाला जाता था, केमिकल रंग नहीं खेले जाते। और उस देश की ज्योग्राफी तो ऐसी होनी चाहिए कि देयर शुड बी अ प्लेंटी ऑफ वाटर, कि आप पानी खेल सके। यह हमारे लिए गर्व की बात थी। हमारे पास इनॉर्मस वाटर है, ये गंगा जमुना का मैदान, ये गंगा जमुनी तहजीब तो बताई गई, गंगा जमुना के मैदान में पानी कितना है कि हम पानी खेल सकते हैं, ये नहीं बताया गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जो बर्फ के इलाकों से आए थे, जहां 6 महीना बर्फ पड़ी रहती थी, और जो बचे 6 महीना बर्फ नहीं रहती थी, तो भी पानी इतना ठंडा रहता था कि एक दूसरे पे फेंक के आप खेल नहीं सकते थे। उन्होंने हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फ्यूज कर दी। या कोई दूसरे जो रेगिस्तानी इलाकों से आए थे, जहां पीने को पानी नसीब नहीं था, खेलना तो बहुत दूर की चीज हो सकती थी, उन्होंने ये हमें जिस चीज को चेरिश करना चाहिए था, जिस कल्चर पे प्राइड होना चाहिए था, उस पे हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इन्फ्यूज कर दिया गया। चाहे वो इंडिया का फेस्टिव सीजन हो, चाहे इंडिया की शादियों का सीजन हो, या इंडिया के कोई भी फेस्टिवल्स हो, और चाहे इंडिया के तीर्थ हो। अब यहां पे मैं एक और बात बताता हूं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू हैव सीन टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडिया में टूरिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। टूरिज्म को हिंदी में कहते हैं पर्यटन। इन इंग्लिश यू कैन से रिक्रिएशनल टूरिज्म, यू गो जस्ट फॉर एंजॉय एंड रिलैक्स। बट इंडिया, there are two types of tourism. One is recreational tourism, which is less, and other is devotional tourism. तीर्थाटन से का महत्व है पर्यटन से ज्यादा। लोग तीर्थ यात्रा की दृष्टि से जाते हैं, and that is such a big economy. अब ये बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए कुंभ में, ये रिक्रिएशन करने आए थे, खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए आए थे? नहीं। और उस 66 करोड़ में 50 लाख फॉर फॉरेनर्स। और ये भी एक खासियत समझिए, जो हमारे अंदर की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है हमारी कल्चर की, विच कैन बी वेरी इफेक्टिवली कन्वर्टेड इनटू अवर एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो 50 लाख लोग आए, वो तो सब हिंदू नहीं थे। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की धार्मिक यात्रा करने को इच्छुक होता है? सिर्फ हमारे यहां इच्छुक होता है। आए, आओ भाई, संगम में स्नान करो, पवित्र स्नान करो, चले जाओ, हम किसी को नहीं रोक रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबडी, आई कैन आस्क, डज एनी नॉन क्रिश्चियन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग ए तीर्थ यात्रा ऑफ वेटिकन? और एनी नॉन मुस्लिम इज इंटरेस्टेड इन हैविंग हज? अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इच्छा व्यक्त भी कर दे, सबसे पहले कहा जाए कन्वर्ट हो जाओ, तभी जा सकते हो। हमारे यहाँ कहा गया आओ, डुबकी लगाओ, पूजा करो, कोई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। बगैर कहे हुए लोग आए, और फिर क्या हुआ? ये आईफोन आप यूज करते हैं, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ कॉलिन पॉवल आई, और अपना नाम उन्होंने कमला देवी रख लिया, दीक्षा। हमने नहीं कहा, बिकॉज आवर कल्चर डजंट डोमिनेट, आवर कल्चर मोटिवेट्स। सो 50 लाख पीपल कम्स हियर। अब एक और बात समझिए, वो यहां देखने क्या आते हैं? यहां पे मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे भी ले जाता हूं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थॉट प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस माइंडसेट से भी हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने टीवी पे बोला, मैंने कहा ये जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाते हैं, इज ए फॉल्स डाटा, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया। क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट का 15 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक वो कहते हैं इंडिया में 90% अनएम्प्लॉयमेंट है, और जैसे 24 से 30 में आते हैं तो वो 30% पे आ जाता है। मैंने कहा भाई उसका रीजन क्या है? मतलब एक प्रोग्राम में मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, तुम लोग सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हो, कितने बच्चे हैं जिनको मदर फादर सपोर्ट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी।
कितने लोग अपने आप पैसा कमा रहे हैं? नो, क्योंकि हमारे फैमिली सिस्टम है। जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा टिल 23-24 इयर्स ऑफ एज, अनलेस अंटिल ही और शी इज हैविंग वेरी टफ फैमिली कंडीशंस, उसको आप छोड़ दीजिए। किसी बच्चे को कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल आर सपोर्टेड बाय फैमिली। वहां पे क्या है, 15 साल के बाद छोड़ दिया, अपना काम कर, मेरे से क्या मतलब, क्योंकि वहां माता पिता तो है नहीं ना, वो हाफ फादर हाफ मदर है। क्योंकि मदर का जो पति है वो फादर हो जरूरी नहीं है, और फादर की जो पत्नी है वो मदर हो जरूरी नहीं है। तो किसी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे। जिसे मजाक में एक बार कहा जाता था कि अमेरिका में हस्बैंड वाइफ है तो 3-3, 4-4 शादियां लोग करते हैं, तो वो एक्स वाइफ है उसकी, तो वो एक्स हस्बैंड है। फिर उनके कुछ एक्स वाइफ और एक्स हस्बैंड से बच्चे हैं, तो कुछ अपने से बच्चे हैं। तो वो कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं, मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी अलग हैं, तुम्हारे बच्चे भी अलग हैं, और हमारे बच्चे भी अलग हैं। इसलिए वहां 15 ईयर्स से आपको जरूरत है एम्प्लॉयमेंट डाटा की। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट डाटा की जरूरत नहीं है। हमारे एम्प्लॉयमेंट डाटा देखना है तो 22, 23, 24 साल की उम्र के बाद से देखिए, एंड देन द सिचुएशन इज डिफरेंट। अनदर बेंचमार्क व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आपने देखा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, टॉप रैंकिंग पे कौन है? फिनलैंड। आइसलैंड एक कंट्री है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है, शायद 7th या 8th नंबर पे, टॉप 10 में है। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब टॉप 10 में है। अब एक दूसरी इंडेक्स है, कंजम्पशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, उसमें आइसलैंड नंबर 1 पे है, उसमें भी फिनलैंड नंबर 3 पे है। ये भाई साहब कौन सी हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है वही एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में भी सबसे ऊपर है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर हैप्पीनेस इंडेक्स, because the benchmark which you have set for happiness index, whether it is truly giving happiness or not, it's a question to be studied. And when India is emerging, अब आप सोचिए अमेरिका में तो सब कुछ है, फिर क्यों जाके स्कूल कॉलेज में गोलियां चल रही हैं? सब कुछ तो है आपके पास। वो जो पुरानी फिल्म का डायलॉग था ना, गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, क्या नहीं है? मां नहीं, मतलब परिवार ही नहीं है। 48% जो बच्चे हैं अमेरिका में, दे आर ब्रॉट अप बाई सिंगल पेरेंट, यानी या तो अकेला बाप उनको पाल रहा है या अकेली मां उनको पाल रही है। इस वजह से एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और उसका इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट है। तो आप जो बेंचमार्क रखते हैं कि इतना पैसा होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, इतनी गाड़ी होगी, इतना ये होगा, एंड द पर्सन विल बी सेटिस्फाइड, इट्स नॉट देयर। मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक हस्बैंड वाइफ रह रहे थे और सिर्फ हस्बैंड नौकरी कर रहा था और वाइफ हाउस वाइफ का काम कर रही थी। दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे थे। कुछ समय बाद दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद वाइफ ने जॉब कर लिया। अब जब दोनों जॉब करने लगे, दोनों को एक मेड सर्वेंट की जरूरत पड़ी। दोनों ने एक मेड सर्वेंट अप्लाई कर लिया। फिर दोनों में लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया, तो एक वकील हायर कर लिया। तो 6 new jobs are created and the GDP has increased, job opportunities have increased, the country has grown, the economy is flourishing. But whether this is giving satisfaction or not, and what I am saying is not just a matter of you can say just a light matter. ये जो sense of individualism which led to frustrative ultra individualism, ये जानते हैं सोसाइटी को कहां पे ले जाके खड़ा करता है? अमेरिका की आबादी कितनी है? 33 करोड़, 39 करोड़। आप सोचिए कि एवरीबडी फील्स सो इनसिक्योर दैट देयर आर 120% गन्स एंड द सिस्टम इज अलाउइंग। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इरेटिक बिहेव कर रहे हैं? नो, ही इज वेरी मच अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज देयर इज ए राइज ऑफ worldwide rise of right wing. In India, we do not call it right wing. हमारे हिसाब से तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है. But they called it right wing. Here what happens? That is connected to a spiritual, religious, devotional sentiment and sense of pride. So that gets satisfied. भाई राम मंदिर बना तो that gives a sense of satisfaction. प्रयाग में महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ लोग आए, that gives a satisfaction. Europe is also having a pride. There is a cultural pride with Britain, France, Germany, Italy. But in America,
There is no cultural pride. Can you name a single sacred place in America? No. Single sacred mountain? No. Single sacred river? No. So America is a real estate. So there cannot be a connect with the land. तो मदरलैंड कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अब क्या है वहां पर सेंस ऑफ प्राइड क्या है कि मेरी जेब में सबसे ज्यादा पैसा है। सो यूएस प्रेसिडेंट नोज दैट आई हैव टू सेटिस्फाई दैट सेंटिमेंट। तो कह रहा देख तेरी जेब में पैसा लाने के लिए मैं दुनिया भर से लड़ रहा हूं। एंड अदर थिंग, सोसाइटीज डिग्रेडेशन लीड्स टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वो क्या होता है, जो अमेरिका में नॉन व्हाइट हिस्पैनिक्स थे, जिसको वास्प कहते हैं, WSP वास्प, व्हाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट। आज से 60 साल पहले देवर 82 to 83% ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 9-10% ब्लैक्स थे और 4-5% में रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब क्या है, दे आर बिलो 60% एंड दैट इज बिकमिंग अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस। और अब आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, अमेरिका में कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वहां पे कोई दंगे हो जाएंगे, सिविल अनरेस्ट होगा। वैसा ब्लैक लाइफ मैटर्स और कैपिटल हिल 2 घटनाएं तो हो चुकी हैं पिछले 5-6 साल। एंड एनी कंट्री विच इज हैविंग 120% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग गन, मतलब गन नंबर ऑफ गन्स आर 120% ऑफ द पॉपुलेशन, a slighted civil unrest can create a huge gigantic problem, and that's why they are very seriously working on this line. अब आप ये समझिए, the problem is not ultra nationalism, the problem is ultra individualism. अब हमारे यहां देखिए क्या, इसका ठीक उल्टा। ये 50 लाख लोग जो कुंभ में आए थे, इनके पास तो सब कुछ था, रुपया पैसा सब कुछ। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, बट आई एम रिपीटिंग इट। वो कहते हैं दुनिया में आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या मिलेगी, इफ यू आर हैविंग एनफ मनी। मार्क्स ने कहा पैसा आ जाएगा, लाइफ खुश, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पास पैसा है तो ये दुनिया हंसी। दूसरे आए सिगमंड फ्राइड, उन्होंने पैसा नहीं, फिजिकल प्लेजर, वो जिंदगी में मिल जाए तो बहुत जिंदगी अच्छी। फिर एक आए फ्रेंच दार्शनिक, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नेम एंड फेम, आपकी सोसाइटी में लोग जाने आपको, सैकड़ों हजारों लोग, एंड आई विल बी सेटिस्फाइड। अब जब वो कुंभ मेले में आते थे और नागा साधुओं को देखते थे तो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते थे, इनको क्या चाहिए, ये किस लिए साधु बने हुए हैं, पैसे के लिए नहीं, फिजिकल प्लेजर नहीं, इनको तो नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए। मतलब आप किसी नागा साधु के पास जाएं और आपका कोई काम बन जाए, आप उसको थैंक्स देने जाएं तो वो डांट के भगा देते हैं, कभी कभी गाली बक के भगा देते हैं। आप कहते हैं भाई ये क्या, आई जस्ट वेंट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड and they are scolding and abusing. You know why? Because they want to even get attached with their name and fame. क्योंकि अगर वो आपकी उस ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप 4 लोगों को बताएंगे तो लोग उनके, तो वो क्या होगा, कीर्ति के मोह में फंसने लगेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो लोग आके इनको देखते थे साधुओं को, और वहां से जहां वो खाए पिएंगे मौज करेंगे वाली उसमें डिस्कोटेक पब में झूमते हुए, तो उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ता था, इसे एक पंक्ति में कहूं, जो वेस्ट और ईस्ट का अंतर दिखाता है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां पर मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल और सिगमंड फ्राइड भी फेल। दूसरी बात समझिए, देयर इज अ यूएस प्रोवर्ब, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, if there is a free lunch there has to be poison in it. हमारे यहाँ उत्तर से दक्षिण तक जाइए, मंदिरों के भंडारे देखिए, गुरुद्वारों के लंगर देखिए, तमाम त्योहारों के ऊपर फ्री लंच दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके यहाँ। और वो एक बड़ा फेमस है कि स्टीव जॉब्स, द फाउंडर ऑफ एप्पल, उसने कहा मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया था कि मेरे पास इतने पैसे कम रह गए थे कि अगर मैं रूम का रेंट देता तो खाने के पैसे नहीं थे, खाना चाहता तो रूम के रेंट के पैसे नहीं थे, तो आई सेलेक्टेड अ रूम which was at a walking distance from ISKCON temple in America, where I used to get 2 times free lunch in a day. और several months उसने इंडिया के फ्री लंच पर काटे हैं। तो आप समझिए सोसाइटी, वैसे तो ऑन द थोड़ा सा डाइग्रेस करते हुए, ये बिल्कुल सही प्रोवर्ब है। जब ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच दिया था तो बड़े खुश थे, अब कहा है गाजा में फौज भेजो भाई।
पाकिस्तानी फौज भेजो गाजा में। अब समझ में आ रहा है कि फ्री लंच दिया क्यों गया था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा उसको समझने की से जरूरत है। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया क्यों उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म का पोटेंशियल है, if we are able to capture the tourism potential, we are able to develop the defense and we are able to develop the new। अब देखो और बात समझिए, जो जेवर का एयरपोर्ट आएगा इसमें मेजर हिस्सा कार्गो टर्मिनल का होगा। मेजर कार्गो टर्मिनल लाइकली टू शिफ्ट फ्रॉम IGI टू जेवर। जब कार्गो टर्मिनल यहां पे आएगा तो आप समझ सकते हैं यूपी की इंडस्ट्रीज के लिए फॉरेन के किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना बेहतर हो जाएगा। एक और चीज में चेंज आया है जो इस बजट में चेंज लाया गया, SM जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कि यूपी और कानपुर का एरिया काफी प्रोमिनेंट पोजीशन में है। अभी तक रूल ये था कि व्हेन यू इंपोर्ट अ प्रोडक्ट एंड यू एक्सपोर्ट, इफ यू एक्सपोर्ट विद इन 6 months देयर विल बी नो एक्साइज ड्यूटी। नाउ इन दिस बजट द ड्यूरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड टू 1 year। अब 1 साल तक, अब ये एक लंबा समय हो गया कि आराम से आप बाहर से सामान मंगाइए और 1 साल के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, यू विल नॉट बी हैविंग एनी एक्सपोर्ट। और जो डील हुई है उससे मुझे लगता है कि जो अभी तक सबसे बुरा इफेक्ट था वो लेदर और आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर था। नाउ दोज थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। और एक पॉइंट और क्लैरिटी कर दूं, कई बार लोग कहते हैं साहब जैसे हमारे यहाँ 18% टैरिफ है, टेक्सटाइल में जो हमारे कंपटीटर हैं टेक्सटाइल और लेदर में, वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब पे 20% टैरिफ है। अब कोई कहता नहीं साहब बांग्लादेश में एक में 0% टैरिफ है। नो, इट्स नॉट ट्रूथ। बांग्लादेश में 0% टैरिफ जानते किस पे है? जो यूएस कहेगा फाइबर भी हमारा, रेयन भी हमारा, एंटायर रॉ मटेरियल हमारा, आप सिर्फ प्रोसेस करके देंगे, वो 0 टैरिफ। यानी बांग्लादेश को सिर्फ अमेरिका का दर्जी बनना होगा तब 0% टैरिफ है। वो अपना प्रोडक्ट डेवलप करके नहीं दे सकता 0% टैरिफ है, उसको 20% है। हमारे यहाँ क्या है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम ही अपना कॉटन लेंगे, हम उससे फाइबर बनाएंगे, हम उससे आपको क्लोथ बना के रॉ मटेरियल बना के देंगे, उसमें हमारा टैरिफ कम है। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि पूरा ग्लोबल सिनेरियो जिस ढंग से चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग सिनेरियो में जो मैंने कहा था वहां पे, इस पॉइंट को एंड में फिर रिमाइंड कर देता हूं। यूरोप के पास आज क्या है? अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा डिफेंस गेट का मटेरियल है, अच्छी लॉजिस्टिक्स है, क्या नहीं है? मैन पावर नहीं है। स्किल्ड मैन पावर चाहिए, इसीलिए मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया था। अब उनके सामने 2 ही ऑप्शन है। जब इंडिया की तरफ वो शिफ्ट करेंगे डिफेंस की इंडस्ट्री, और आपने देखा कि टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस को रफाल का फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट एविएशन ने दिया। आने वाले टाइम में आप ये तय मान लीजिए कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग के हब्स इंडिया की तरफ बनेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, द डेमोग्राफिक प्रॉब्लम विच यूरोप इज फेसिंग, आने वाले 10 to 15 ईयर्स में द पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि जैसे नेटो का अरेंजमेंट अमेरिका और यूरोप का था, इंडिया और यूरोप के बीच में कोई नेटो जैसा अरेंजमेंट हो जाए। हो सकता है 15-20 साल बाद जहां यंग लड़के लड़कियां इतने कम हो जाएंगे, भाई साहब थोड़ा फौज भी रखिए यहाँ पर, हमारे पास आए नहीं कोई लड़ने के लिए, सबको खा पी के लिविंग रिलेशनशिप में रह के बच्चे अच्छे ना पैदा करके निपट गए, बूढ़े हो गए, अब हमें आपकी जरूरत है। तो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। अब दूसरे लोग कहते हैं साहब, लास्ट में आपको ये वाला पॉइंट, चाइना इज इमर्जिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं आपको सिर्फ एक डाटा चाइना पे देता हूं, 2 डाटा, और उसके बाद आप सोचिएगा कि फ्यूचर कहां पर है। चाइना कहता है कि उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की और 1978 में, और सक्सेसफुली उसने उसको इंप्लीमेंट किया। इसलिए फिर 2016 they changed the policy into 2 child policy. In 2022 still the population was not rising, so in 2022 they changed into 3 child policy. अभी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, वो 6 महीने के बाद ही कपल को फोन करना शुरू करते हैं कि हम आपको हाउस में इतना छूट देंगे, हम आपको टैक्स में इतनी छूट देंगे, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, पॉपुलेशन घटनी शुरू हो गई। अब एक लॉजिकल बात सोचिए, अगर चाइना ने 1978 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, उस समय उसकी पॉपुलेशन जैसे हमारी 1968 68 करोड़ के आसपास थी, चाइना की 90 करोड़ के आसपास थी। अगर उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ली थी, 2.2 तो चाहिए सस्टेन करने के लिए,
तो 1 के बाद उनकी पॉपुलेशन इतनी रफ्तार से बढ़ती कैसे रही? हाउ दे आर हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन? या तो वो दावा गलत लगता है या डाटा गलत लगता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि अराउंड 48 years back you have forcefully, authoritatively, successfully implemented single child policy, still आपकी पॉपुलेशन उसी रफ्तार से बढ़ रही थी जितनी हमारे यहाँ बढ़ रही थी। जबकि हमारे यहाँ धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे और घुसपैठ भी हो रही थी, फिर भी उतनी आबादी जितनी हमारी आपकी। बात थोड़ी हजम नहीं होती है। अब दूसरा फैक्ट देखिए, चाइना में सबसे बड़ा प्रेशर किस सेक्टर के ऊपर है? रियल एस्टेट सेक्टर। उनकी सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी थी, टॉप 3 में से एक, एवरग्रांड, दे फाइल्ड देयर बैंक्रप्सी इन दिसंबर 2024। सेकेंड बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी वैंको, वो ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है। दे हैव गॉट द वेवर ऑफ 6 months। तो जून 2026 में पता चलेगा वेदर वैंको विल बी बैंक्रप्ट और दे विल बी एबल टू सर्वाइव। अब आप सोचिए, आपने सुना होगा वहां घोस्ट टाउन्स हैं, सिटीज हैं, रहता कोई नहीं। बहुत सी जगहों में बिल्डिंग डिमोलिश की गई। There are 26 railway stations which are very splendidly built, but not even a single train goes. इससे ये शक फिर पैदा होता है, इसका मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन कम हो सकती है, क्योंकि बाकी में आप पॉपुलेशन डाटा छुपा सकते हैं, पर रियल एस्टेट तो रियल पॉपुलेशन से ही कैटर होगी। In the month of November they have stopped giving the real estate sales data, वो भी बंद कर दिया है। तो एक थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं सच है। देयर इज अ थ्योरी कि चाइना की पॉपुलेशन 100 बिलियन भी नहीं है। अब दूसरी बात समझिए, यूरोप की पॉपुलेशन 70 से 72 करोड़ है, ठीक। चाइना का तो मिडिल क्लास उससे बड़ा है। चाइना हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। हम 1.4 बिलियन थे, हमने जीएसटी कम करके सस्टेन कर लिया। तो चाइना का तो हमसे 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका मिडिल क्लास हमसे 5 गुना बड़ा है, उसकी इनकम हमसे ज्यादा है, वो तो कहीं ज्यादा सस्टेन कर सकता है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे। व्हाई दे आर नॉट फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन? अब कुछ लोग ये कहते हैं, नहीं नहीं साहब, वो चूंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया तो वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अगर ये सच है तो इसका मतलब बहुत भारी संख्या में बूढ़ी पॉपुलेशन है वहां। अगर आप कह रहे हैं कि 78 से पहले वाले लोग भी बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट दे आर स्टिल अलाइव, तो ऑन बोथ वेज द फंडा इज वेरी क्लियर कि चाइना के साथ भी आयरन कर्टन में कुछ ऐसा हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज आई थी कि शी जिनपिंग ने अराउंड 7 जनरल्स ऑफ द आर्मी 1 गो में डिसमिस किए। पिछले करीब करीब 4-5 सालों में 100 जनरल लेवल के लोग डिसमिस किए गए। जनरल लेवल के पिछले करीब 4-6 महीनों में 18 लोग, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के 30 लोग, और आर्मी में नंबर 2 लेवल के लोग डिसमिस किए गए, और 11 ऐसे जनरल लेवल के लोग हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट डिसमिस किए गए। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट डिसमिस किए गए। इसका मतलब कुछ वहां भी ऐसा हो रहा है जो आयरन कर्टन के पीछे दिख नहीं रहा है। तो अगर जो अमेरिका में हो रहा है वो दिख रहा है, जो यूरोप में हो रहा है वो दिख रहा है, और चाइना में कुछ कुछ हो रहा है जो सिर्फ महसूस हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो फिर अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारत के लिए कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बिल्कुल वर्ल्ड दिखाई पड़ रहा है हमको कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पूरी ग्लोबल सिनेरियो को अगर आप देखें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये जो हमारी स्किल्ड ट्रेडिशनल मैन पावर थी, ये ट्रेडिशनली स्किल्ड मैन पावर दुनिया के किसी कंट्री के पास नहीं थी जो हमारे पास 47। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी ने इसको बर्बाद कर दिया। मतलब आज मैं कहना चाहता हूं, जिनको आज आप ओबीसी कहते हैं ना, अगर उनको बैकवर्ड रखने के लिए कोई जिम्मेदार है तो अब वो एक अलग बात है, उस समय की हमारी गवर्नमेंट। आप कहेंगे कैसे? अब आप छोटी बात सोचिए, हमारा जुलाहा वीवर वो स्किल्ड था। 47 में इतनी बड़ी स्किल्ड पॉपुलेशन थी किसी के पास? हमारा कारपेंटर, हमारा मोची स्किल्ड था। होना क्या चाहिए था? जैसे आज विश्वकर्मा योजना स्टार्ट हुई है, आज स्टार्टअप शुरू हुई है, हमें करना यह चाहिए था कि उन लोगों को ट्रेंड करके इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। हमने इसका उल्टा किया कि अगर कारपेंटर 4 मिलके एक बड़ी आरा मशीन लगाने चाहें तो लाइसेंस राज, यू नीड ए लाइसेंस।
अगर वीवर चाहे, जुलाहा चाहे कि मैं हैंडलूम, लाइसेंस, अब वो बेचारा कहां से लाइसेंस लेगा? लाइसेंस भी कैसा था, 53 क्लियरेंसेस चाहिए थे, पता नहीं 47 से 48 इंस्पेक्टर आके कभी भी वो कर सकते थे। तो आप सोचिए, जो ग्रो करके इतना ऊपर जा सकता था उसको आपने फोर्स कर दिया, भाई अब तो छोटी सी आरी लेके काम करो, तेरे पास तो कोई इसको बचा ही नहीं। आज वो मौका है कि हमारी जो स्किल्ड फोर्स है उसको टैप करके हम ऊपर लाएं। वर्ल्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो वातावरण बन रहा है वो हमको एक अच्छा मौका दे रहा है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ हैं, जिसे मैं आपके समझने के लिए एक सेंटेंस और कह के समाप्त करता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। हर कंट्री का वक्त होता है। चाइना जानते क्यों राइज किया? इसके 3 फैक्टर समझिए। 78 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, उससे पहले माओ की कल्चरल रेवोल्यूशन में करोड़ों लोग मारे गए थे और वो मेनली सब बुजुर्ग थे जिनको फोर्सफुली काम करने को कहा गया कि तुम गांवों में काम करो। वहां ना इलाज था ना कुछ था, ज्यादातर बुजुर्ग लोग मर गए। अब देखिए 78 में उसने ओपन इकोनॉमी की। डेंग जियाओपिंग विजनरी थे, मैं कह रहा हूं डेंग जियाओपिंग वाज अ विजनरी। उसने ओपन इकोनॉमी चालू की हमसे 13 साल पहले। अब ये चाइना का भाग्य देखिए, 86 में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू कि ग्लोबलाइजेशन करना है, कंप्लीट हुई 93 में और 1 जनवरी 95 को WTO बन गया। यानी ग्लोबलाइजेशन का प्लेटफॉर्म सेट हो गया इन द डिकेड ऑफ 90। उस 95 में जो लोग उस समय 22, 23, 24 साल के रहे होंगे, हम लोग की उम्र वाले लोग, उनके साथ 3 बातें थी। एक, माँ बाप तो थे ही नहीं 90% के, और बच्चा एक था, तो फैमिली लायबिलिटी वॉज बेयर मिनिमम। गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास में आने की छटपटाहट थी। तो आधी या 1/3 सैलरी पर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने को मैं तैयार था। यानी चाइना के लिए उस ग्लोबलाइजेशन को टैप करने का पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। और एक और फैक्टर था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो रशिया के पास सब कुछ था, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड फैक्ट्रीज, वेरी गुड मटेरियल, वेरी गुड स्किल्ड मैन पावर। तो अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के दोबारा रशिया न खड़ा हो जाए। Russia may not usurp and again become a competing power with America. So in order to counterbalance Russia, they put their entire factories to China. तो चाइना के तो बल्ले बल्ले हो गए 2000 के दशक में। पॉपुलेशन भी कम है, वो कम पैसे में काम करने को तैयार है, ज्यादा काम करने को तैयार है, सीखने को तैयार है, फैक्ट्रियां आपके पास थोक के भाव आ रही हैं, सब कुछ अच्छा था। आज पॉपुलेशन उनके नेगेटिव हो गई है, यूरोप और अमेरिका का मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है और आज वो सिचुएशन हमारे साथ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम उन चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इंजीनियरिंग और हमारी इंडस्ट्रीज, इन सब को बहुत तेजी से, और इसमें जो कुछ नए सेक्टर्स हैं जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल ग्लोबल मेडिसिन बनाया है जिसमें आयुर्वेद सेंटर में है और उसका सेंटर जामनगर में बना है। तो हर्बल मेडिसिन, अभी आपने देखा होगा इस बजट में वेलनेस इंडस्ट्री के लिए एक सर्टेन अमाउंट रखा गया है। जानते हैं भारत में क्या होने वाला है? पहले आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का दीजिए क्योंकि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। मेडिकल के बाद क्या होता है? ऑपरेशन के बाद वो जो 1 महीना लगता है व्यक्ति को रिकवर होने में, उसके लिए जो हमारे पास वेलनेस का मैकेनिज्म है, आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन, ये दुनिया में दूसरे देश के पास नहीं है। तो वी कैन डेवलप अ वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंडस्ट्री along with this world class wellness industry and both together can make India an attractive attraction. अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि कल्चरल अट्रैक्शन जो इंडिया में क्रिएट हो सकता है सारे कंट्रीज को लेके, तो एक तरफ हमारा रिलीजियस टूरिज्म, दूसरी तरफ हमारी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तीसरी तरफ डिफेंस के प्रोडक्शन में हमारी तरफ बढ़ते हुए लोग और रियल डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास। बट लास्ट में भी कहूंगा, इतना भी सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सी शक्तियां इसमें लगी पड़ी हैं कि ये होना नहीं चाहिए, भारत उठना नहीं चाहिए। तो क्या कर रहे हैं भाई? लड़ा दो किसी तरह इनको आपस में। कैसे लड़ाओ? दक्षिण और उत्तर में लड़ाना है। याद है कर्नाटका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ वाले ज्यादा टैक्स देते हैं, नॉर्थ वाले कम देते हैं।
इसलिए साउथ को नुकसान हो रहा है। और जब जर्नलिस्ट ने उनसे कहा तो क्या साउथ को अलग हो जाना चाहिए? हाँ जी, हम अलग होने को सोचे। ठीक, फिर स्टेट पे लड़ा दो। तमिलनाडु के एक मंत्री ने क्या बोला था यूपी बिहार के लोगों के लिए? हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। उसने कहा था दे कम हियर टू जस्ट क्लीन द टॉयलेट्स। तेलंगाना के सीएम ने क्या बोला कि बिहार वालों का डीएनए खराब है, हमारा डीएनए अच्छा है। देन लैंग्वेज पे लड़ाना है। आपने तमिल हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा पहले के जमाने में, मराठी और उत्तर भारतीय ग्रुप में देखा होगा, पर मराठी हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं देखा था, वो अब देखने को मिल रहा है। कन्नड़ हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं देखने को मिला था, अब देखने को मिल रहा है। अब तो बांग्ला हिंदी का भी शुरू करने की बात। तो क्षेत्र पे लड़ाना है, राज्य पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है। क्योंकि चार चीजें होती है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम यानी समझाने से तो भारत माना नहीं। अटल जी के जमाने में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हुए मोदी जी के जमाने में हम आगे ही बढ़ते चले गए। दाम, ये दाम वाली ये सरकार रही नहीं, इधर देते रहो और डिफेंस का प्रोडक्शन करवाओ नहीं, हमसे लेते रहो मशीनें। फिर दंड, अटल जी के जमाने में लगा सैंक्शंस और मोदी जी के जमाने में लगा टैरिफ, फिर भी हम झुके नहीं। तब चौथा क्या बचता है? भेद। तो इस भेद को हमें अच्छी बात ये समझना है, ये साम दाम दंड भेद जो है, अगर हम इस भेद को समझ सके तो हम लक्ष्य को भेद सकेंगे। और हमारे लिए कौन सा फ्यूचर वेट कर रहा है, इसको आप ऐसे समझिए, जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे खत्म करता हूं। वर्ल्ड एआई समिट की हमने बात कही थी। एआई में सबसे कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वो चैट जीपीटी है, ओपन एआई। इसके चेयरमैन सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि टुडे एवरीबडी आस्क एआई अबाउट एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन, आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। डू यू नो एनी, देयर इज एनी वन क्वेश्चन विच इज आंसर इज नॉट विद एआई बट यू नो इट? कोई ऐसा भी सवाल है जिसका जवाब एआई के पास नहीं है पर आपके पास है? यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ सैम ऑल्टमैन? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। ब्रह्म और आत्मा में अभेद, ये एग्जैक्ट जो आदि शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्म है नापरः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नापरः। एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्राह्मण। ये कौन कह रहा है? सैम ऑल्टमैन। और आज के जमाने में तो ये भी हो गया ना, इंडिया के बारे में कोई अच्छी चीज बताओ तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्लिप कटवा गैंग टूट पड़ेगा, अरे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल गलत बोला गया, ऐसा तो कभी कहा ही नहीं था। तो उन सब के लिए बता देना चाहता हूं, ये सैम ऑल्टमैन का 27 दिसंबर 2022 का 2:34 AM का ट्वीट है, एनीबडी कैन गो एंड चेक। और 11 फरवरी 2024 को सैम ऑल्टमैन ने एक और ट्वीट किया, वी आर हैविंग कंट्रोल ओनली ऑन अवर एक्शंस बट नॉट ऑन द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और फिर ये भी समझ लीजिए, हम क्यों करें लक्ष्य भेद करेंगे? एआई तो छोटी चीज है, जो इन्होंने कहा था, जो टेक्नोलॉजी बदल रही, अब नई चीज आ रही, क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर किस लेवल पे है कि गूगल ने कहा कि उसकी चिप विलो ने 5 मिनट में वो कैलकुलेशन कर लिया जो एक नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को 10⁻24 ईयर्स लगेंगे, यानी मोर देन द एज ऑफ यूनिवर्स। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कमिंग कि अगर एज ऑफ यूनिवर्स से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर हमको कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे ले जा रहा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 1972 में इंटेल का फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला साइंटिस्ट, जिसका नाम है फेडरिको फैगिन, FAGGIN, ही इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट ऑफ इटालियन ओरिजिन। आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, ही इज स्टिल अलाइव, ही इज 84 इयर्स ऑफ एज। वो ये कह रहा है, जिसने पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल के लिए 1972 में, वो कह रहा है दिस क्वांटम कंप्यूटर इज लीडिंग अस टू द डोर स्टेप ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो भैया तब तो एक्सपर्ट हम ही हैं। जब इंजन आए थे आईसी इंजन्स, तो तेल जो था मिडिल ईस्ट में था तो उनका जलवा आया, मशीनें यूरोप में थी तो उनका जलवा आया, क्रिटिकल मिनरल चाइना के पास थे तो उनका जलवा आया। अब कॉन्शियसनेस तो हम ही है, चैतन्य राष्ट्र तो हम ही हैं, और हमारे यहाँ उस कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व भी अगर कोई करता है तो हम ही लोग करके रखते हैं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन और बोल देना चाहता हूं, आपको विश्वास हो जाता है। कोविड आया था तो हमारी सबसे बड़ी डिफेंस शील्ड क्या थी? जिसकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी थी उसके बचने का चांस ज्यादा था। एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक टर्म से बात करूं तो इम्यूनिटी किसकी अच्छी थी? जिसने खाने पीने, दिनचर्या से लेके व्यायाम करने तक
ज्यादा सिस्टमेटिक जीवन जिया है उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी। यानी साफ शब्दों में कहूं, जिसने अधिक संयम किया है उसकी इम्यूनिटी अधिक होगी। एंड द इम्यूनिटी कैन नॉट बी डेवलप्ड इन फ्यू डेज, कि आपको लगा रहे कोविड आ गया लाओ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी। बट ये जो कोविड था, अगर ये माना जाए कि ये बायोलॉजिकल वेपन था, तो दिस वाज अ वेरी क्रूड बायोलॉजिकल वेपन, लाइक दैट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि ऊपर से जहाज आते थे ऐसे ही बम छोड़ देते थे, जिस घर पे गिरना हो गिर जाए, मुझसे क्या मतलब। तो वैसे ही उन्होंने वायरस छोड़ दिया, किसी को मार दिया, तुमको भी मार दिया, किसी को भी मार सकता है, किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। अब क्या चलता है, लेजर गाइडेड मिसाइल आता है, प्रिसाइज इसी बिल्डिंग के इसी कमरे को मारेगा 2000 किलोमीटर दूर से। नाउ द रिसर्च इज गोइंग ऑन जीनोम स्पेसिफिक वायरस, एक पर्टिकुलर जीनोम को ही अटैक करेगा, दूसरे जीनोम को अटैक ही नहीं करेगा। यानी मान लिया जाए कि साहब वो चाइनीज जीनोम को तो अटैक ही नहीं करेगा, यूरोपियन जीनोम पे अटैक करेगा। तो जैसे आपको पता हो कि मिसाइल आ रहा पर आप करो तो बगल वाली बिल्डिंग पे आ रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहेंगे मेरे जीनोम पे थोड़ी अटैक करेगा। अब जब जीनोम स्पेसिफिक वायरस आएगा तो नया कॉन्सेप्ट आएगा जीनोमिक इम्यूनिटी। जैसे शरीर की इम्यूनिटी बिल्डअप करने में बरसों लगते हैं, जीनोमिक इम्यूनिटी उनकी होगी जिन्होंने संयम पीढ़ियों से किया होगा। और भारत में हर एक व्यक्ति कुछ भी करे एक निश्चित संयम जीवन में करता ही है। मैं कहता हूं उस दारू भी पीता हूं, सब कुछ करता, कहता नवरात्र में तो कम से कम रुक जाओ, पूजा पाठ के दिन तो रुक जाओ, अगर इस दिन है मंगलवार है तो नॉनवेज मत खाओ। और सबसे बड़ा संयम क्या होता है, मैं क्यों कहूंगा कि भारतीयों के पास वो पीढ़ियों से ज्यादा है। देखिए, आपको कोई चीज अच्छी लग जाए, आप कोई चीज अच्छी लगी खाना खाने के, आप ना खाना खाएं, एक संयम चाहिए। मुझे लगा पिक्चर देखनी है, नहीं, संयम चाहिए। मुझे ये गाड़ी ये मोबाइल चाहिए, वो हमने नहीं कहा, संयम चाहिए। सबसे बड़ा संयम क्या होता है, जो मुझे अच्छा लग गया या अच्छी लग गई उससे शादी नहीं करूंगा या करूंगी, जो मेरे माँ बाप कहेंगे शादी करूंगी, इसके लिए जिस लेवल का संयम चाहिए वो बेस्ट वालों में नहीं है। और हमारे यहाँ पीढ़ियों से उसको फॉलो किया जा रहा है। और आज भी 95% मैरिजेस आर अरेंज्ड, यानी इतना संयम है कि भैया माँ बाप जो तय करेंगे वो करेंगे। तो इट इज प्रूव्ड कि जीनोमिक इम्यूनिटी इज लाइकली टू बी मोर इन इंडिया। कॉन्शियसनेस का एरा आ रहा है जिसका स्टोरेज इज इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग का हम सिंक होल बनने जा रहे हैं विच इज इन इंडिया। अब तो भैया जब इस रंग का कोई वायरस आएगा तो सबसे ज्यादा बचाव भी हमारा होगा, प्रॉस्पेरिटी भी हमारी होगी। और लास्ट में ये देखिए, लोग कहते हैं ना डॉलर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? दुनिया में मैसिव गोल्ड रश है, हर कंट्री गोल्ड खरीद रहा है। छोटी छोटी गलतियां कैसे व्यक्तियों कर देती हैं। रशिया के $300 बिलियन रशिया यूक्रेन वॉर पे जब्त कर लिए अमेरिका ने, तो लोगों का डॉलर से कॉन्फिडेंस हट गया कि भाई अगर यूएस डॉलर में रखेंगे कभी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। अब आप देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, लगभग 7-8 हजार टन। भारत के पास 700-800 टन है, कुछ 786 टन या 800 टन के आसपास। मगर प्राइवेट सेक्टर में माना जाता है कि भारत में 24-25 हजार टन सोना है। तो वर्ल्ड की हार्ड करेंसी का भी बेस इंडिया। तो इसलिए आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल है, बस हम उस भेद से बचे रहें, थोड़ी सावधानी रखे रहें, तो 1000 साल आगे तक ये 22 साल का जो बेस बनेगा हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। और 10,000 साल पुराना हमारा इंस्पिरेशन है। तो एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वी हैव टू बी कॉशियस इन द प्रेजेंट। तो गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट। महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। This was such an insightful, evoking, interesting speech by sir. What a great address. एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। An appreciation to Shri Sudhanshu Trivedi ji and to Professor Vinay K. Pathak ji.
Let's have a big round of applause, everyone, for Professor Vinay K. Pathak ji. Thank you. Thank you so much, sir.